न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। ऑपरेशन सिंदूर पर पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का विवादित बयान, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने दिया करारा जवाब। आसनसोल नगर निगम के तृणमूल पार्षद रणवीर सिंह जीतू के बागी तेवर, क्या होने जा रहा है आसनसोल नगर निगम में खेल। नियाज अहमद को गिरफ्तार करने के खिलाफ कांग्रेस और भीम पार्टी का एक साथ आसनसोल नॉर्थ थाना घेराव, विरोध प्रदर्शन। टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती एक विवादित बयान देकर घिर गए हैं। उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को स्क्रिप्टेड ड्रामा यानी पूर्व नियोजित नाटक बताया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वायरल वीडियो में चक्रवर्ती कहते नजर आ रहे हैं, ये सब एक दिखावा है। बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करके ही 7 मई को ये हमला किया। ये सब एक नाटक है, सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर किया गया है। একটু আগে কীর্তি বলছিল, আপনারা শুনেছেন তো, হ্যাঁ, যে কিভাবে সিঁদুর খেলা শুরু করেছে বিজেপি সরকার। গোটাটাই যুদ্ধ খেলা, গোটাটাই নাটক। পাকিস্তানের সঙ্গে ফিটিং করেছে, ফিটিং করে আমি বলুন একটা পহেলগাঁওয়ে পর্যটকরা বেড়াতে এসছে। আপনারা কেউ কাশ্মীর গেছেন? হাত তুলুন। কাশ্মীর গেছেন তো? কাশ্মীরে দেখেছেন 10 ফুট দূরে দূরে ওই ইনসাস রাইফেল নিয়ে মিলিটারিরা দাঁড়িয়ে থাকে? দেখেছেন? আপনারা দেখেছেন কাশ্মীরে কাঁটা তার দিয়ে রোড ব্লকেজের রাখা থাকে? এবং পহেলগাঁও কেন প্রতিটা টুরিস্ট স্পটে মিলিটারিতে ভরা থাকে, মিলিটারি গাইড করে ওখানে। তাহলে ভাই, একদল দুষ্কৃতকারী চলে এলো পহেলগাঁওয়ে, কিন্তু তার 3 দিন আগে সব প্রোটেকশন তুলে নেওয়া হয়েছে। 27 জনকে গুলি করে মারলো। আর গুলি করার আগে কি বললো? बोला आप हिंदू है, दुम। आप सिंदूर पहनते हैं, दुम। आप কালমা পড়তে জানতে হয়, দুম। এই গল্পগুলো তো আপনারা সবাই জানেন, টিভিতে দেখেছেন। মোদি সাহেবের বেতনভুক টিভিরা মোদি যত রাজা যত বলে, পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ। এমন অবস্থা হয়েছিল, এমন বলতে শুরু করেছিল যে মিলিটারি থেকে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে সাংবাদিক বৈঠক করে বলতে হয়েছে যে শুধু সাংবাদিকদের কথা শুনুন, অন্য কারো কথাতে মন দেবেন না, কারণ ওরা তো আর মিথ্যা কথা বলবে না। কারণ তখন মোদির সাংবাদিকরা বলছিল, মোদিজি এখন দেখুন একটা ড্রেস করছে, মিলিটারি ড্রেস, সে গদরের না সেই ডায়লগটা, যে कराची में ब्रेकफास्ट करेंगे, इस्लामाबाद में लंच करेंगे और पेशोवर में जाके डिनर करेंगे। मतलब मोदी साहब এই ড্রেস পরে ঘুরছে এখন, এই ড্রেসের ছবি দেখবে চারদিকে। তো গল্পটা যদি বুঝতে কেউ ভুল করো ভাই, তাহলে লোককে বোঝাবে কি করে? এটাই হলো মোদ্দা কথা, যে এরা সিঁদুর খেলতে নেমেছে, কিন্তু এই সিঁদুর তো বাঙালির রক্তে। এই সিঁদুর মায়ের শীতে আছে, তাই এই সিঁদুরকে নিয়ে যদি খেলা করে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। বলতে হবে মায়ের সিঁদুর নিয়ে যারা খেলা করে তাদেরকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে হবে, এটাই বোঝাতে হবে। আর এর অঙ্ক অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছে। দেখবেন 6 মাস থেকে শুভেন্দু বাবু বলছেন হিন্দু 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 হিন্দু। আরে আমরা কি হিন্দু নই নাকি? হরনাম সিং হিন্দু নয় না? আমি হিন্দু নই, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি 3 ওয়াক্ত করি, জব করি, আমি হিন্দু নই? একাই শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু আর আমাদের ওই অমিত শাহ হিন্দু? কত বড় বেঈমান নিমক হারাম। যেদিন ডিক্লেয়ার হয়েছে যুদ্ধ, সেদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে আমরা দলমত নির্বিশেষে আমরা
কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলাম, কিন্তু 28 জনের যে মৃত্যু হয়েছে তার বিচার চাই। কোথায় বিচার হলো? অভিষেক ব্যানার্জি সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন, বিচার কোথায়? লোকগুলো এলো, মারলো পহেলগাঁওয়ে, আর মেরে দিয়ে কোথায় উবে গেল কর্পূরের মতো। কই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট? এত লড়াই, কিন্তু এই দুষ্কৃতকারীকে এখনো খুঁজে পেল না। আসলে কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ এটা একটা গেম প্ল্যান। হিন্দু হিন্দু খেলে হিন্দুর ভোটকে পোলারাইজ করে, হিন্দু মুসলমানের লড়াই করে সারা ভারতবর্ষকে একটা সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট করে, একটা ষড়যন্ত্র করে তপ্ত তাউসে থেকে যাওয়ার একটা চিত্রনাট্য। এটাই আপনারা যারা এখানে আছেন প্রত্যেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, প্রত্যেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি। এটা হাটে বাটে, জলে জঙ্গলে, সমস্ত জায়গায় মানুষের কাছে এই গল্পটা আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে এরা হিন্দু হিন্দু বলে হিন্দুদের কাছে পাত্তা না পায়, যাতে এরা হিন্দুরা বলে তুমি হিন্দু নাও, তুমি কাফের, মুসলমানরা যা বলে তুমি বেঈমান। এটা তো इस बयान पर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर विषयों पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना बेहद निंदनीय है। अगर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो उन्हें वहीं जाकर घर बनाकर रहना चाहिए। এই কারণে মাফিয়া এন্টি সোশ্যালদেরকে রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে রাখতে হয়। তাদেরকে রাজনীতিতে স্পেস দিয়ে দিলে এটাই হয়। তারা জানেই না কি বলা উচিত কি বলা উচিত না। অর্ধশিক্ষিত, উচ্চ মাধ্যমিক কোনোভাবে পাস করেছে, ওর কাছে তো এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। আর অনুব্রত মণ্ডলের শিষ্য, ও তো এগুলোই বলবে। আরে ভাই বলি, এত যখন পাকিস্তানের প্রতি তোমার প্রেম, তো চলে যাও না, পাকিস্তানে চলে যাও। ভারতবর্ষে আসো, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। পাকিস্তানে গিয়ে জিন্না সাহেবের যে মাজার আছে তার পাশে 3 কাঠা জমি কিনে সেখানে একটা ঘর করে থাকো, যদি পাকিস্তান এত ভালো লাগছে তোমাদের। এটা ঠিক না, কিন্তু কি করবেন, তৃণমূল কংগ্রেসে এইসব করা যায়। ওর বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর হবে না। অন্য কেউ এই কথা বললে এখন এই অ্যারেস্ট হয়ে যেত, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর হবে না, কিচ্ছু হবে না। এটা মেনে নিতে হবে আমাদের। आसनसोल कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की ओर से आसनसोल उत्तर थाना को घेर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी न्याज अहमद को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। अहमद रेलपाड़ क्षेत्र का निवासी है और इलाके में पानी की समस्या को लेकर आवाज उठा रहा था। कांग्रेस नेता पुरुषोंजीत पोतंडी और शाह आलम के साथ AIMIM के जिलाध्यक्ष दानिश अजीज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आकर निर्दोष युवकों को फर्जी मामलों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरह सियासी है और न्यास को गलत तरीके से टारगेट किया गया है। प्रदर्शन के दौरान दानिश अजीज ने कहा, आज जब बीरभूम के तृणमूल नेता आम जनता के परिवार जनों को गाली गलौज करते हैं और अनुब्रत मंडल जैसे आरोपी नेताओं के साथ पुलिस हाथ में हाथ डालकर कोर्ट जाती है, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ एक आम युवक पर कार्रवाई कर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने मामले में सुधार नहीं किया तो पूरा रेलपाड़ क्षेत्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज करेगा। आज हम लोग आए थे नॉर्थ थाना के सामने, इसलिए, और नॉर्थ थाना में हम लोग गए उसी से डेपुटेशन देने के लिए। वो इसलिए कि बीजेपी का नेता अरिजीत राय जिस तरीके से नॉर्थ थाना को धक्का मुक्की करता है, गेट को बजाबता बंद कर देता है, और डब्लू पासवान जिस तरीके से नबी साहब का खिलाफ में गुस्ताखी किया था, उसके खिलाफ में जो FIR हुआ था 2-2, एक साइबर में, एक नॉर्थ थाना में अरिजीत राय के अगेंस्ट में खुद नॉर्थ थाना किया था, लेकिन उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, बजाबता वो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन एक लड़का न्याज अहमद जो बेकसूर पानी के लिए आवाज़ उठाता है और धक्का मुक्की होता है, कोई खून खराबा नहीं है पुलिस के पास में, कोई भी रिपोर्ट पे ऐसा नहीं है, और उसको अटेंड टू मर्डर का केस खाना पड़ता है। हम लोग शांति तरीके से आ जाए थे यहाँ पे बात करने के लिए कि आप CD रिपोर्ट सही से कीजिए ताकि उस बच्चे का बेल हो जाए, और जो दूसरा जो भी FIR आपके पास है उसको आप अरेस्ट नहीं करते हैं।
24 তারিখ 24শে মে একটা বিস্তিমাল্লা ওয়ার্ড নম্বর 28 আসানসোল রেলপারে একটা ঝামেলা হয়েছিল। নিয়াজ আহমেদ বলে একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার ছেলে আছে, তার সাথে কিছু তৃণমূলের ছেলেদের ধাক্কামুখি হয়েছিল জলের জন্য। আবার সেটা দেখা যায় 25 তারিখে ডেটেডে একটা ওর বিরুদ্ধে, নিয়াজ আহমেদ যে বেচারা আওয়াজ তুলেছিল, ওর বিরুদ্ধে একটা কেস হয়েছে। ইভেন তাকে 1 তারিখ বা 2 তারিখ ওর দোকান থেকে, রাহালেন থেকে ওকে এইভাবে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে যেমন কত বড় ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসছে। এবার আমরা এটা বুঝতে পারছি না এটা কোন দাদা, কোন দিদি, কোন লোকের ফোন এলো যে এত তৎপরতা হয়ে গেল পুলিশের তৎপরতাটা ভালো, উই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, বাট এই ধরনের জালিয়াতি মামলাতে অ্যাপ্রিসিয়েশন অস্বীকার। কারণকে বুঝতে হবে, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে বলতে চাই এটা টোটালি জালিয়াতি মামলা। যদি এটা জালিয়াতি মামলা থাকতো না তাহলে একটা ছেলে, সাদা ছেলে, হোয়াইট কলার ছেলেকে এইভাবে আনাটা একদম আনকনস্টিটিউশনাল। এর প্রতিবাদ করছি আমরা। আজকে আহলে আওয়াম পশ্চিম বর্ধমান তরফ থেকে আমরা আসানসোল নর্থ থানা এসেছিলাম, কিন্তু এখানকার যে আইসি সাহেব আছেন, ওসি সাহেব আছেন, উনি বলছেন আমি এটাতে কোনো মন্তব্য করব না। ইভেন ওনারা আমাদের ডেপুটেশনটাও অ্যাকসেপ্ট করেননি। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर बागी तेवर अपनाए हैं। उन्होंने निगम में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की बात कही है, जिस पर कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। पिछली बोर्ड मीटिंग का जिक्र करते हुए जीतू सिंह ने बताया कि उन्होंने पार्किंग और होर्डिंग से संबंधित 10 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसे वसूलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चीफ विजिलेंस कमीशन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि निगम में कई अधिकारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी को 3 साल से अधिक संवेदनशील पद पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने 6 महीने पहले उठाए गए एक अन्य मुद्दे का भी उल्लेख किया, जिसमें 12 कारखानों पर 510 करोड़ रुपए का बकाया है। उनके अनुसार मेयर ने इस राशि को 15 दिनों के भीतर वसूलने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई वसूली नहीं हुई है। फुटपाथ पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी जीतू सिंह ने निगम प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के खिलाफ अस्थायी निर्माण हो रहे हैं और मेयर की फुटपाथ सुधार योजना पूरी तरह विफल रही है। दादा बात ऐसा है ना कि हर बोर्ड मीटिंग में हम कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं, वही मुद्दा उठाते हैं जिसके अगेंस्ट में ममता बनर्जी लड़ाई करती है। आज आप बोल दीजिए, लास्ट बोर्ड मीटिंग में हमने मुद्दा उठाया कि पार्किंग होर्डिंग तक कितना पैसा बाकी है, इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। मेरे हिसाब से करीब 10 करोड़ रुपये बाकी है, कोई हिसाब नहीं दिया। मैंने मुद्दा उठाया कि एज़ पर CBC गाइडलाइन
कोई भी सेंसिटिव जगह पे जहाँ पर फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई आदमी 3 साल या 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। किंतु ये बोर्ड में देखा जा रहा है, इस कॉरपोरेशन में देखा जा रहा है 10-10 साल से बंदे वहाँ पर हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा आदमी है जिसका कोई पोस्ट नहीं है कॉरपोरेशन में, इंचार्ज बोल के, वो 10 साल से है। वो होर्डिंग का भी काम देख रहा है, पार्किंग का भी देख रहा है, लाइट का भी देख रहा है। क्यों नहीं उसको हटाया जा रहा है? मेयर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, अब उनको क्यों नहीं हटाया जाता है? आज मेयर साहब बोलते हैं इलीगल का 510 करोड़ रुपया, मेरे कहने पर इन्होंने इंस्पेक्शन किया, खाली 12 फैक्ट्री का 510 करोड़ रुपया आया। मेयर साहब ने खुद कहा कि 15 दिन में आ जाएगा। ये 6 महीने पहले की बात है, आज तक वो पैसा नहीं आया। ज़रूर कहीं घपला है, ज़रूर क्यों सेटिंग है यहाँ पर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पार्क है, क्या आसनसोल की पब्लिक अंधी नहीं है? आसनसोल की पब्लिक बहुत अच्छी है। वो पार्क क्या 1 करोड़ के ऊपर से वो पार्क बना है, उस पर घपला है। आज 10-10 साल से आदमी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? यहाँ तक कि बोरो ऑफिस में जाइए, 6-6 महीना में इंजीनियर ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम मुद्दा उठाते हैं, हमको बोलता है सस्पेंड कर देगा। अरे हमको सस्पेंड करने से क्या होगा? हम जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो फुटपाथ है, फुटपाथ होना चाहिए। फुटपाथ एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, मगर आज देखा जा रहा है कि यहाँ 4-4 फुटपाथ है, 1:1, एक सामने, एक आगे, एक पीछे। ये मेयर साहब ने कोशिश की थी कि तुम मेयर साहब के साथ जो घूमते हैं ना, उन्होंने ही इसमें अड़ंगा डाल दिया। मेयर साहब का कसूर नहीं है, किंतु मेयर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी सावधान हो जाइए। जो आपके चेले चमुंडे कुछ हैं, उनसे सावधान हो जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का उद्देश्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने की दिशा में भी पुलिस की भूमिका को दर्शाना है। इसी क्रम में आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की ओर से कन्यापुर हाई स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ओसी एमडी अशरफुल इस्लाम, एसआई राजीव मुर्मू और कांस्टेबल मृणाल चक्रवर्ती उपस्थित थे। अधिकारियों ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षों की महत्ता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और स्कूल प्रशासन ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण बचाने की शपथ ली। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।